اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک غیر ملکی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دعویٰ کیا جسے اس وقت کا اب تک کا ان کا سب سے جھوٹا دعویٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی اب تک انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں اس میں سب سے بڑا جھوٹ اسے مانا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ تو وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اور یہ کہا کہ اس وقت مسلمان ہندوستان میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ ملک کو محفوظ پناہ گاہ قرار دیا۔ مودی جی کے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ اب تک کہ مودی جی نے جو جھوٹ بولے ہیں اس میں سب سے بڑا جھوٹ کون سا؟ تو اسی جھوٹ کو سب سے بڑا جھوٹ کہا جا رہا ہے، اور لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ ٹرینوں میں مسلمان مارا جا رہا ہے داڑھی ٹوپی دیکھ کر، گورنمنٹ کے ادھیکاری ریوالور، سرکاری لباس، سرکاری پولیس والے داڑھی ٹوپی دیکھ کر مار رہے ہیں، موب لنچنگ داڑھی ٹوپی دیکھ کر کی جا رہی ہے، اور ہر جگہ داڑھی اور ٹوپی اور نام دیکھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، اور لگاتار مسلمانوں کے ساتھ سازشیں، دنگے فساد کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان جنت ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ مودی جی نے آج تک شاید ان کو بھی یاد نہیں آتا ہے کہ کبھی بولا ہو۔ آئیے دوسری بڑی خبر، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ہٹلرانہ اور تاناشاہی کا انداز اگر دیکھنے کو ملا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ جی ہاں، ایک طرف تو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اور چور تو چور سینہ زور، لوگ کہہ رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری لو اور بتاؤ کہ کیا ہے، لیکن بجائے حملے کی ذمہ داری لینے کے اور بتانے کے،
जिन अराकीन पार्लियामेंट ने आवाज उठाया, ऐसे तकरीबन 146 अराकीन पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। यह मुल्क की 70-75 साल की तारीख में, हिस्ट्री में यह ऐसा पहला वाकया है। यानी मोदी जी अब यह बताना चाहते हैं कि अब मुल्क में कानून नहीं चलेगा, मुल्क में संविधान नहीं चलेगा, हिटलराना और तानाशाह बनकर मैं रहूंगा और हम जो चाहेंगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और पार्लियामेंट का भी मजाक बना दिया गया है। अब अराकीन पार्लियामेंट जो सस्पेंड कर दिए गए, उन तमाम लोगों ने गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से विजय चौक तक जबरदस्त अंदाज में एहतजाजी मुजाहरा किया। अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन जोरदार अंदाज में एहतजाज कर रही है, क्योंकि अब 146 के करीब अराकीन पार्लियामेंट सस्पेंड हो चुके हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब से वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, वो मुसलमानों के बाज़ तबकों से उन्होंने राब्ता कायम किया है। उन्होंने दाऊदी बोहरा बिरादरी से मुलाकात की और मुस्लिम मुल्कों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके बाद भी पीएम मोदी अभी तक उत्तर प्रदेश का जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है, उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद में आज तक मोदी जी नहीं गए। मौलाना अरशद मदनी से जब पूछा गया कि क्या आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत देंगे दौरे की दारुल उलूम देवबंद, तो मदनी साहब ने कहा कि दारुल उलूम से आज तक किसी को बुलाया नहीं जाता, दारुल उलूम ने किसी को बुलाया नहीं। हाँ, जो वहां गए हैं खुद वहां गए और जो भी वहां आता है जाता है उसको खुश आमदेद हम कहते हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या पीएम मोदी दारुल उलूम का दौरा करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगरचे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरखास्तों को खारिज कर दिया, लेकिन हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, कुछ वकला से बातचीत भी हो गई है। और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी खुलकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। और राम मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो बाबरी मस्जिद की जगह है और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, यानी बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर सही थी और वो जगह जहां पर राम मंदिर बन रहा है वो बाबरी मस्जिद की ही जगह है। ये अलग बात है कि हमसे छीनी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, हमने मान लिया, वरना सब जानते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि ये जगह बाबरी मस्जिद की ही है। आइए, कोरोना का भूत फिर मुल्क को डराने के लिए आ गया है और खबरें आ रही है कि कोरोना से मुल्क भर में फिर 6 मौतें हुई है। 24 घंटों में 358 नए केसेस सामने आए हैं। केरला में सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए हैं। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में 300 नए केसेस सामने आए हैं और उनसे 3 मौतें भी हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 328 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 2669 हो गई है। जिन रियासतों में कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर जुनूबी रियासतों से आ रहे हैं। ताहम अब शिमाली हिंदुस्तान की रियासतों में भी नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में 1, दिल्ली और गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 10, तमिलनाडु में 12, तेलंगाना में 5 और कर्नाटक में 13 नए केस दर्ज किए गए हैं। आइए, बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह ओपनिंग होने जा रहा है। राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले मुसलमान अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अयोध्या में खौफ और दहशत का माहौल है और अहले खाना को अयोध्या से बाहर भेज देने का मंसूबा बना रहे हैं। शहर के 5 लाख मुसलमानों को 1992 का तशद्दुद याद आ रहा है। आइए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल कौमी राजधानी के पार्लियामेंट अहाते में बीजेपी के कारकुनों ने जोरदार अंदाज में आंदोलन किया और नारे लगाया कि हम धनगढ़ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम धनगढ़ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी कारकुनों ने जिला कलेक्टर और गवर्नर के तवस्सुस से सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम सौंपा और तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आप समझ सकते हैं कि नायब सदर जगदीप धनगढ़
की जिस तरीके से मिमिक्री की गई, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि हम धनगढ़ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट पर हमला तुम्हें बर्दाश्त है और पार्लियामेंट पर हमले पर कोई सवाल पूछे तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो ये तो अजीब बात है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से मुताल्लिक बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो गया, यानी पार्लियामेंट की मोहर उस पर लग गई। अब अपोजिशन पार्टी आज क्लियर तौर से ये कह रही है कि इलेक्शन की हैसियत को भी खत्म करने की नापाक कोशिश में मोदी जी और बीजेपी कामयाब हो गए हैं और अभी पार्लियामेंट चलती रहेगी और पार्लियामेंट में ऐसे तमाम बिल बीजेपी पास करवा लेगी जो वो चाहती है। और इसी वजह से बाकायदा एक प्लान के तहत 146 मेंबरान पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ताकि कोई अपोजिशन ही ना रहे, कोई इख्तिलाफ करने वाला ही ना रहे, कोई अपोज करने वाला ही ना रहे। टेलीकॉम बिल पार्लियामेंट से भी, टेलीकॉम बिल भी मंजूर हो गया। खैर, इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर से मुताल्लिक बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसको लेकर अपोजिशन साफ तौर से ये कह रही है कि ये एकदम नापाक किस्म का बिल है, जिसके जरिए से मोदी जी और बीजेपी इलेक्शन की हैसियत को भी खत्म करना चाहते हैं, यानी सेकुलरिज्म और जमहूरियत को खत्म करना आरएसएस का ये अहम एजेंडा है, जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी काम कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त देवबंद से बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी की हमशीरा, उनकी हकीकी बहन, गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो गया और तदफीन अमल में आई। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की बेटी और जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर सैयद अरशद मदनी की छोटी बहन और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी की फूफी गुज़िश्ता शब उनका इंतकाल हो गया और उन्हें कासमी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी जनाजे की नमाज में कसीर तादाद में सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा इहाता मौलवी में रात 10 बजे मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अदा कराई। नमाज जनाजा में खुसूसी तौर पर दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, नायब मुहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी, मुफ्ती राशिद आज़मी, मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जामे मस्जिद कला सहारनपुर के मैनेजर मौलाना फरीद मज़ाहिरी और साबिक़ रुकन असम्बली मुआविया अली और भी सरकर्दा शख्सियात इस जनाजे में शरीक रही। मौलाना सैयद अरशद मदनी की रिहाइश गाह पर ताज़ियत का इज़हार करने का सिलसिला जारी है, जिसमें यूपी सदर, कांग्रेस के सदर राजे राय और इमरान मसूद वगैरह के नाम भी शामिल हैं। आइए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बेदारी के लिए, हिंदुओं की बेदारी के लिए नहीं, हिंदुत्व यानी कट्टरवाद की बेदारी के लिए शिवसेना की भक्ति शक्ति संवाद यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है और ये यात्रा वजीर आला एकनाथ शिंदे की पहल है। राम राज्य का आगाज होगा, ऐसा उनका कहना है। शिवसेना सरबराह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और आजानी धर्मवीर आनंद दिघे के हिंदुत्व नजरियात के पैरोकार होने के नाते शिवसेना के मुमताज रहनुमा और इस वक्त के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रूहानियत पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मक सेना तश्कील दी है और वो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बेदारी के लिए शिवसेना की भक्ति शक्ति संवाद यात्रा का एहतमाम कर रहे हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं है, इलेक्शन करीब आ रहा है और जितना हिंदुत्व को बेदार किया जाएगा, जितना कट्टरवाद को आम किया जाएगा, जितनी नफरतें पैदा होगी, इतना इनको लगता है कि इलेक्शन में फायदा होगा। आखिरी बड़ी खबर आ रही है जी, आप जानते हैं
کہ ملک کی پارلیمنٹ بھی نریندر مودی کے دور میں اب محفوظ نہیں ہے، نہ بارڈر محفوظ، نہ پارلیمنٹ محفوظ، اور جب پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے تو عام جنتا کا کتنا برا حال ہوگا۔ اور مسلمان تو باقاعدہ موب لنچنگ کا شکار ہو ہی رہے ہیں، اور جگہ جگہ دنگے فسادات اور سرکاری ظلم و ستم کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جیسے پارلیمنٹ میں حملہ ہوا اور پارلیمنٹ میں حملے کو لے کر اپوزیشن نے خوب چلایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ پارلیمنٹ پر حملے کو لے کر سوال کرنے والے ممبران پارلیمنٹ کو ہی باہر کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ ہٹلر شاہی اور تانا شاہی کبھی ملک میں کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اب پارلیمنٹ کی سیکورٹی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ دلی پولیس کو حفاظتی بندوبست سے ہٹا لیا گیا۔ دلی پولیس کو پارلیمنٹ کی حفاظتی بندوبست سے ہٹا لیا گیا اور اب CISF پارلیمنٹ کی سیکورٹی سنبھالے گی۔